যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग আমরা চৈতামৃতের অন্তলীলায় আছি, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 32 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলা 17.32 অনওয়ার্ডস। 32 নম্বর শ্লোক। শুনি প্রভু গোপী ভাবে আবিষ্ট হইলা, बोलिए बोलिए। सुनी प्रभु गोपी भावे आविष्ट হইলা, ভাগবতের শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলা। ভাগবতের শ্লোকে अर्थ করিতে লাগিলা। ओके, फिर से সেই শ্লোক শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোপী ভাবে আবিষ্ট হলেন এবং সেই শ্লোকটির অর্থ বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। ओके, कौन सा श्लोक? मैं वो श्लोक फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ आप लोग। ये श्लोक और श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, अनुवाद पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है? 31 नंबर का এই শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। হে কৃষ্ণ, তোমার অমৃত মধুর বংশীর ধ্বনির দ্বারা সমাহিত হয়ে ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্ত্রী তার সতীত্ব ধর্ম থেকে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্য স্বরূপ তোমার এই রূপ দর্শন করে গাভী সকল, পক্ষী সকল, বৃক্ষ সকল, মৃগ সকল পুলকিত হয়েছে। হিন্দি में पढ़िए। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तीनों लोक में ऐसी कौन स्त्री है जो आपकी अद्भुत बंशी से निकले मधुर गीतों की लय से मोहित न हो जाए? इस तरह ऐसी कौन होगी जो सतीत्व के मार्ग से च्युत नहीं हो जाएगी? आपका सौंदर्य तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट है। आपकी सुंदरता को देखकर गौएं, पक्षी, पशु तथा जंगल के वृक्ष भी हर्ष से स्तंभित हो जाते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से उद्धृत है। ओके, सो ये श्लोक के ऊपर अभी श्लोक आएगा विश्लेषण। यस इंद्राणी माता जी। আমাদের তো এত বিশ্লেষণ নেই, দু লাইনেই ছেড়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, কারণ কি সব জিনিস কভার হয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। লম্বা হলেই হতে হবে না, মানে সব জিনিস সব পয়েন্ট কভার করেছেন গুরুদেব। ভালো করে দেখুন, এভরিথিং হ্যাজ বিন কভার্ড। ओके, अगला श्लोक 33 नंबर। सो अभी सब विश्लेषण होगा उसी श्लोक के ऊपर। कोइलो गोपी भावावेश, कोइलो राशि परोवेश, कृष्णेर शुनि उपेक्षा वचन। हेलो गोपी भाव वेश, केलो रासे परवेश, कृष्णेर शुनि उपेक्षा वचन। কৃষ্ণের মুখ হাস্যবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি, রোষে কৃষ্ণ দেন উলাহন। कृष्णेर मुख्य हास्यवाणी, त्यागे ताहा सत्य मानी, रोषे कृष्ण देहे ओलाहन। यस, ইন্দ্রাণী মাতি ভালো করে দেখুন কোন পয়েন্টটা মিসিং আছে বলবেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, গোপীগণ ভাবে आविष्ट হয়ে रासलीला प्रवेश করলেন। ओके, गोपी लोग सब भाव में आविष्ट होकर अभी रासलीला में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है शंभु प्रभु? किंतु श्री कृष्णের উপেক্ষা বচন অর্থাৎ ঔদাসীন্য বাক্য শ্রবণ করে কৃষ্ণের সেই পরিহাসকে সত্য বলে মনে করে ভাবলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাদের ত্যাগ করতে চাইছেন। आप लोग को मालूम है, रास में बुलाया और बुलाने के बाद भगवान बोला अभी तुम लोग चले जाओ, इतना रात को तुम लोग को आना नहीं चाहिए था। तो अभी उन लोग को लगा अरे भाई अभी तो श्री कृष्ण हम लोग को त्याग करना चाह रहे हैं, ठीक है? তাই তখন তারা রুষ্ট হয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন गुस्से में। क्या तिरस्कार किया? अगला श्लोक। नागर कहो तुमी करिया निश्चय, নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়, এই ত্রিজগৎ ভরি আছে যত যোগ্যা নারী, এই ত্রি জগত ভরে আছে যত যোগ্য নারী, তোমার বেনু কাহা না আকর্ষয়, তোমার বেনু কাহা না আকর্ষয়। तो गुस्से में अभी गोपी लोग भगवान को बोल रहे हैं। तारा बोललेन,
हे नागोर, नागोर माने लवर ना, ब्यूटीफुल लवर ऐसे कुछ है ना, नागोर मीन्स क्या? लवर क्या? लव প্রিয়তম লিখা है। হে নাগর, বলো দেখি এই ত্রিয় জগতে যত যোগ্যা নারী আছে তোমার বেনু কাকে না আকর্ষণ করে? किसको नहीं आकर्षण करेगा बताओ? কইলা জগতে বেনু ধ্বনি সিদ্ধ মন্ত্রা যোগিনী দুতি হইয়া মোহে নারী মন। আরে সর্বনাশ, এইভাবে যদি না করেন না তাহলে কাউকে একটা দিয়ে সব পুরো দিয়ে পড়াতে হবে, এত ধৈর্য নেই আমার, এত ধৈর্য নেই। কয়লা জগতে বেণু ধ্বনি সিদ্ধ মন্ত্রা যোগিনী দুতি হইয়া মোহে নারী মন। মহৎ কণ্ঠা বাড়াইয়া আর্য পথ ছাড়াইয়া আমি তোমায় করে সমর্পণ। মহৎ কণ্ঠা বাড়াইয়া আজ পথ ছাড়াইয়া আমি তোমায় করে সমর্পণ। ओके, लेट मी रिप्रूव जी। जगते तुम्हें बेनुध्वनि करले, माने जगत में जब आप बेनुध्वनि करते हैं, आप जब बांसुरी बजाते हैं, ता मंत्र सिद्धा যোগিনী রূপে দুতি হয়ে নারীদের মন মোহিত করে। ओके, मंत्र सिद्धा যোগিনী রূপে, कोई मंत्र वशीकरण कुछ ऐसे मंत्र करके দুতি হয়ে নারীদের মন মোহিত করে। अंग्रेजी में लिखा है the vibration is like a messenger in the form of a yogini perfect in the art of chanting mantras. Okay, कोई योगी मंत्र उच्चारण करके एकदम मन हरण कर लेता है वैसे कुछ। এবং তাদের মহা উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে অতি গুরুজন প্রভৃতির সেবারূপ বেদ বিহিত পদ পরিত্যাগ করিয়ে তাদের তোমার কাছে সমর্পণ করে। सब अपना ड्यूटीज कैंसिल करके आपके पास खींच के ले आते हैं। ধর্ম ছাড়ায় বেনুদ্দারে হানে কটাক্ষ কামসরে লজ্জা ভয়ে সকল ছাড়ায়। ধর্ম ছড়ায় বেনু দ্বারে হানি কটাক্ষ কাম সরে লজ্জা ভয় সকল ছড়ায়। এবে আমায় করি রোষ ওহি পরিত্যাগে দোষ ধার্মিক হইয়া ধর্ম শিখায়। এবে আমায় করি রোষ কহি পতি ত্যাগে দোষ ধার্মিক হজা ধর্ম শিখায়। यस पंकज प्रभु। पिछला श्लोक में दूती का मतलब क्या हुआ? जोगिनी रूपे दूती। The vibration acts like a messenger in the form of a yogini, perfect in the art of chanting mantra. अच्छा, मैसेंजर, दूत, दूत से दूत। ओके, दूती हुईया। आप लोग का हिंदी में तो श्लोकार्थ दिया है ना, वर्ड टू वर्ड? यस प्रभु जी, दिया हुआ है। बंगाली दूती मतलब दूती, दूती मतलब दूती ही लिखा हुआ है। अच्छा, मैसेंजर। আমাদের বাংলায় দূত হবে, দূত, দূত থেকে দূত, যেহেতু মহিলা স্ত্রী। ओके, 36 সেই বেনু, ये हो गया ना, श्लोक पढ़ लिया मैंने। শ্লোক हो गया। সেই বেনু ও কটাক্ষ রূপ কামস্বর দ্বারা আমাদের বিদ্ধ করে ধর্মপথ ও লজ্জা ভয় ছাড়িয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেছে, কিন্তু পরিত্যাগ আদি দোষ দর্শন করিয়ে এখন তুমি ধার্মিকের মতো আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছ। हाँ, अभी शुभंकरी माता जी भगवान बोल रहे हैं गोपी लोगों को, हाँ तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ, दोष दर्शन तुम लोग का दोष होगा, धर्म तुम लोग अधर्म का पथ जा रहे हो, ऐसे करके तुम हम लोग को धर्म शिक्षा दे रहे हो। भगवान कैसे बोल रहे हैं? गुड, देयर इज नो क्वेश्चन, मींस एक्चुअली वेरी सिंपल वे, सिंपल है, समझने सिंपल है, लेकिन अनुभव एंड रियलाइजेशन तो बहुत ऊपर है। 36 नंबर श्लोक। अन्य कथा प्रभु जी, ये एमोरस लव का क्या मतलब हुआ? सरेंडर्ड इन एमोरस। 36
36 में 36 or Yeah, 36? 35. 35. My goodness, where are you? In 35 years we crossed 36. Now you're asking 35. No, this Okay. is प्रभु surrendered and वही जो अभी आप बोले थे last word amorous love I finally found it. supposedly brings That increases their great anxiety and induces them to give up the regulative principles of obeying superiors. Finally, she forcibly brings them to you to surrender in amorous love. Amorous love. बांग्ला लिखा है I mean, amorous, something magnanimous होगा, बहुत ज़्यादा amorous, the word meaning amorous, AMOUROUS. Amorous means lusty it's written. ओके प्रभु In English, काम, extreme desire. Yes, तुमने करेंगे माता जी? प्रभु ये जो लास्ट लाइन है कि जब ये जो आप मत बोलिए। हमें कौन सा श्लोक का? ये जो मैंने क्या? यही जो पढ़ रहे हैं आप 36 हम 35 पर अभी। उन्होंने 35 से पूछा था। Yes, अच्छा वो बोलिए। तो माता जी ने आपने पढ़ा जो अच्छा 36 हाँ बोलिए। इसका लास्ट लाइन है जब आप हमें धार्मिक सिद्धांतों का उपदेश देते हैं तो हम निरुपाय हो जाती हैं। निरुपाय मतलब ना घर का ना घाट का, हेल्पलेस, जिसका कोई उपाय पूरा सब कुछ छोड़ के यहाँ है और यहाँ बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए था, ईश्वर है ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा आपने बुलाया, बांसुरी बजाकर आप ही बुलाया और फिर बोला ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था आपको। हेल्पलेस हो जाता है, ना यहाँ का ना वहाँ का। जिसका कोई उपाय नहीं हो। ये प्रभु जी ये चीज बंगाली में तो नहीं आया है, निरुपाय होने का ऐसा कुछ नहीं आया बंगाली में। ওকে লেট মি 36 না, কিন্তু পরিত্যাগাদি Yes, 36 দর্শন করি এখন তুমি ধার্মিকের মতো আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছ, আমাদের ধর্ম কত লজ্জা ভরিয়ে তুমি তোমার কাছে নিয়ে এসেছো, এখন আমি अभी तुम अच्छा 36 ना यस इंग्लिश में दिया हुआ है क्या निरूपाय? श्लोक में दिया हुआ है क्या निरूपाय? नहीं श्लोक में भी नहीं लगा है कहीं पे। तो हिंदी में ठीक है, आई मीन इट कैरीज दैट मीनिंग ओनली, ठीक है हिंदी में एक्स्ट्रा दिया हुआ है बट इट कैरीज द मीनिंग। हिंदी में प्रभु 35 का भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है थोड़ा चलता है। थोड़ा वैष्णव आचार्य लोग हम लोग के गुरुदेव और सब जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उन लोग थोड़ा एक्स्ट्रा देता है बिकॉज दे अंडरस्टैंड मोर, थोड़ा चलता है उतना बट इट कैरीज द सेम मीनिंग मोर और लेस। यस इंद्राणी माता जी ওই ওই এটারই অন্য মানে আমরা তো বাংলায় বুঝে নিলাম ওই যে আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছ সেটা তো অন্যভাবে বলছে, ওইটা হিন্দিতে অত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে। হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই এতে, হ্যাঁ একই জিনিস। একই জিনিস। ওকে তো 37 শ্লোক পড়া হয়েছে না? হ্যাঁ শ্লোক नहीं पढ़ा নেই পড়া। অন্য কথা অন্য মন বাহিরে অন্য আচরণ এই সব শঠ পরিপাটি। অন্য কথা অন্য মন বাহিরে অন্য আচরণ এই সব শট পরিপাটি। তুমি জানো পরিহাস হয় নারীর সর্বনাশ ছাড়ো এইসব কুটিনাটি। তুমি জানো পরিহাস হয় নারীর সর্বনাশ ছাড়ো এই সব কুটিনাটি। তোমার মন আমি পড়ে দিচ্ছি দেখো তাহলে একসঙ্গে করে নেব তিনটে। তোমার মন একরকম কথা অন্যরকম, हरे कृष्णा आप बोल रहे हो कुछ मन में कुछ ও আচরণ আরেক রকম और आचरण भी कुछ दूसरा कुछ। এই সমস্ত তোমার সঠতার পরিপাটি বা কৌশল মাত্র। These are all tricks, इंग्लिश में लिखा है well planned tricks. You know how to make jokes that cause the complete annihilation of woman. তুমি পরিহাস জানো তাতে নারীর সর্বনাশ হয়, অতএব এইসব কপটতা ছাড়ো। ক্লিয়ার? বেনুনাদ অমৃত ঘোলে অমৃত সমান মিঠা বলে
অমৃত সমান ভূষণ সিঞ্চিত। বেনু নাড়ু অমৃত গলে, অমৃত সমান মিঠা বলে, অমৃত সমান ভূষণ সিঞ্চিত। তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন হরে প্রাণ, কেমনে নারী ধরি বেকচিত। তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন হরে প্রাণ, কেমনে নারী ধরিবে কচিত। এক बेनु नाद रूप अमृत घोल। घोल का इंग्लिश में लिखा है बटर मिल्क, बांग्ला घोल बोला है ना, घोल गर्मी में हम लोग लेते हैं घोल। छाछ हिंदी में छाछ। एक बेनुनाद रूप अमृत घोल, द नेक्टेरियन बटर मिल्क ऑफ योर फ्लूट वाइब्रेशन, माय गुडनेस। ताते आबार बाक्য অমৃত রূপ মিষ্ট বুলি, তাতে আবার অমৃত সমান ভূষণ ধ্বনি। এই তিন প্রকার অমৃত মিলে আমাদের কান মন ও প্রাণ হরণ করছে। নারী হয়ে আমরা কিভাবে আমাদের চিত্ত স্থির রাখবো? तीन चीज है। एक तो द नेक्टेरियन बटर मिल्क ऑफ योर फ्लूट वाइब्रेशन, सेकंड द नेक्टर ऑफ योर स्वीट वर्ड्स, एंड थर्ड द नेक्टेरियन साउंड ऑफ योर ऑर्नामेंट्स मिक्स्ड टुगेदर टू अट्रैक्ट आवर ईयर्स। ये तीन चीज हम लोग का कान को आकर्षण कर रहा है, मन को आकर्षण कर रहा है, प्राण को आकर्षण कर रहा है। कैसे हम अपने 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 आप लोग इन दिस वे यू आर किलिंग अस, इंग्लिश में लिखा है। এত কহি ক্রোধাবেশে ভাবের তরঙ্গে ভাসে, উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন। এত কহি ক্রোধাবেশে ভাবের তরঙ্গে ভাসে, উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে। রাধার উৎকণ্ঠা বাণী পরি আপনে বাখানি, কৃষ্ণ মাধুর্য করে আস্বাদন। রাধার উৎকণ্ঠা বাণী পড়ি আপনে বাখানি, কৃষ্ণ মাধুর্য করে आस्वादन। तो ये विश्लेषण कौन कर रहा है अशोक प्रभु? ये श्लोक 39 नंबर विश्लेषण कौन कर रहा है? पंकज प्रभु? महाप्रभु नहीं, रॉन्ग। कृष्णदास कविराज कर रहे हैं प्रभु जी। यही बोले श्री चैतन्य महाप्रभु। देखिए कविराज गोस्वामी भी वही ट्यून में श्लोक बोल दिया जैसे ट्यून में महाप्रभु गा रहे थे ना, कल भी हम लोग देखा ना, ऐसे याद होगा आप लोगों को क्या? यही बोले श्री चैतन्य महाप्रभु। ক্রোধের আবেশে ভাবের তরঙ্গ ভাসতে লাগলেন এবং তার মন উৎকণ্ঠা রূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো। রাধা রানীর উৎকণ্ঠা সূচক বাণী পড়ে, अच्छा ये सब राधा रानी का बानी है, তিনি তা ব্যাখ্যা করে, नहीं 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 नहीं, राधा रानी उत्कंठा सूचक बानी पढ़े प्रभु आप बोलेंगे वो राधा रानी का श्लोक? उत्कंठा सूचक बानी पढ़े তিনি তা ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ माधुर्य आस्वादन करते लगे। हाँ अभी पढ़ेंगे। एक्चुअली समराइजेशन में आया था, कभी कभी महाप्रभु खुद ही एक श्लोक पढ़ लेते और उसका व्याख्या करते थे ना, ये भी आया था ना कल। तो ये श्लोक श्रीमती राधा रानी का कहां से लिया गया है? এই শ্লোকটি গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। कौन लिखा है गोविंद लीलामृत? कविराज गोस्वामी। क्या कवि कर्णपुर? आई डोंट थिंक सो। नहीं, कविराज गोस्वामी। कविराज गोस्वामी, ओके। ये श्लोक का ट्यून क्या होगा? ना 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 नाद जलद निश्वन श्रवण काशी सच्चिनी जिता। दया करे क्यों पढ़ुन? नाद जलद निश्वनः श्रवण कर्षि संजित, सनर्मस सूचक क्षर पदार्थ भांगी उत्थित। सनर्मरस शुचकाशर पदार्थ भंग युक्तिक। रामादिका वरंगना हृदय हरि वंशी कलह।
रामादिका वरंगना हृदय हारी वंशी कलह मे मदन मोहना सखी तनती कर्ण स्पृशम समे मदन मोहना सखी तो नती कर्ण स्पृहम। ये इसका ट्यून नहीं है, कोई ट्यून होगा पर्टिकुलर, हम ठीक से कर नहीं पा रहे, इसका ट्यून हमको मालूम नहीं है। आगे भी गोविंद लीलामृत का कुछ श्लोक आया, उनका कंस्ट्रक्शन बहुत अलग है, बहुत लंबा है, वो ट्यून हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ होगा इसका ट्यून। ओके प्रभु हिंदी में तो नहीं लिखा गोविंद लीलामृत। ओके ठीक है, लिखा हुआ है माता जी तात्पर्य लिखा है, तो लिखा है ना, तात्पर्य में लिखा है माता जी, 528 में लिखा हुआ तात्पर्य में, 528 का तात्पर्य में। ओके हाँ, इसका श्लोकार्थ 40 नंबर। हाँ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, হে সখী, যার কণ্ঠস্বর মেঘের মতো গম্ভীর, যার ভূষণের শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করে, যার ভূষণের শব্দ, इसका अर्थ क्या है भूषणের शब्द? आभूषण की रुंधुन। अच्छा, आभूषण ऑर्नामेंट्स का जो आवाज है, ठीक है। যার নর্ম বাক্য অনেক ভঙ্গি আছে, যার মুরলী ধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি শ্রীগণের হৃদয় আকর্ষণ করে, সেই মদন মোহন আমার কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করছে। ठीक है, सबको क्लियर है ना? अभी खुद ही ये श्लोक पढ़ा महाप्रभु, अभी खुद ही विश्लेषण करेंगे 41 नंबर। श्री रूप मंजरी पद कंठेर गंभीर ध्वनि नव घन ध्वनि जिनी जार गुणे कोकिल लजाय जार गुणे कोकिल लजाय। कंठेर गंभीर ध्वनि नवधन ध्वनि जिनी जार गुणे कोकिल लजाय जार गुणे कोकिल लजाय। तारो एक श्रुति कने डुबाय जगतेर काने पुनो कानो बाहुरी ना ताय पुनो कानो बाहुरी नाय। तारो एक श्रुति कने डुबाय जगतेर काने पुना कान बाहुरी नाय पुना कान बाहुरी नाय। सो हम लोग का मूल श्लोक कौन सा है? 40। अभी जो विश्लेषण हो रहा है सब उसी का लिए हो रहा है, 40 नंबर श्लोक के लिए। ये पंकज तो पढ़िए। শ্লোকার্থ। নবীন মেঘের ধ্বনিকে পরাজয় করে যার কণ্ঠে গম্ভীর ধ্বনি বিরাজমান, যা মিষ্ট গানে কোকিল লজ্জা পায়, যা সামান্য কিছু মাত্র কর্ণগত হলেই জগতের অনন্য কানকে এমন নিমগ্ন করে যে সেই কান আর ফিরে আসতে পারে না। कोई भी उपमा जो समझ नहीं आया बोलिए, डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। मुकुंद प्रभु म्यूट। ऐसा ये लास्ट वाला लाइन लिखा हुआ जो, यदि ऐसा कर किसी के कान में प्रवेश करता वह तुरंत ही समस्त अन्य प्रकार के श्रवण से विहीन हो जाता है और दूसरा कुछ सुनने का इच्छा नहीं करेगा, सुन नहीं पाता है कि इच्छा नहीं करेगा। One is immediately bereft of all kinds, all other types of hearing. bereft माने वंचित हो जाता है। वही होगा, सुनने का इच्छा नहीं करेगा ना, जीव का तो इच्छा अपने हाथ में है, सुन नहीं पाएगा ऐसा क्या? तो ऐसा ही लिखा है, विहीन हो जाता मतलब सुन ही नहीं पाएगा। इंग्लिश में bereft लिखा है, हिंदी में लिखा है সেই মদন মোহন আমাদের কর্ণে স্পৃহা বৃদ্ধি করেছে।
मीन्स आकर्षण किया उसके ऊपर, और बाकी सब चीज माइनस। সেই কান আর ফিরে আসতে পারে না, इंग्लिश बांग्ला লেখা আছে, और दूसरा चीज के लिए फिर আসতে পারে না। अगला श्लोक, ये नवीन मेघের ধ্বনিকে পরাজয় করে। तो भगवान का कंठेर गभीर ध्वनि, भगवान का जो वॉइस इतना अच्छा है, सुंदर है। नवीन मेघेर ध्वनि के, नया क्लाउड बहुत क्या बोलना चाहेंगे आप लोग, उनका ध्वनि कैसा है? गर्जन करता है, गर्जन करता है। वो तो सभी क्लाउड गर्जन ही करता है। ओके, उनका बारी नहीं, उनका गंभीर बारी, मतलब जब गुस्से में बोल रहे हैं वो जो जाने को, उनका गंभीर बारी लिखा हुआ हिंदी में, कृष्ण की गंभीर बारी। ओके, गंभीर माने गुस्सा या सीरियस? डीप वॉइस, गंभीर माने डीप वॉइस। जब वो लोग गोपी लोग आई तो गुस्सा से ही तो बोले कि जाओ, नहीं गुस्सा से नहीं बोला था। नहीं, डीप वॉइस, गंभीरता से बोले, गुस्सा गंभीरता से। यस, इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ বাবুজি, এই নবীন মেঘের ধ্বনি ওটা গর্জন হবে না, নবীন মেঘের ধ্বনি মানে হালকা আওয়াজ হবে। হালকা, আচ্ছা। ওকে, 42 নম্বর শ্লোক। কহ সখী কি করি উপায়, কহ সখী কি করি উপায়। कह सखी की करी उपाय, कह सखी की करी उपाय। শ্রী শব্দ গুণে হরিলে আমার কানে, এবে না পাই তৃষ্ণায় মরি যায়, এবে না পাই তৃষ্ণায় মরি যায়। कृष्ण से शब्द गुने हरिले हमारा कान में, एवे ना पाए तृष्णाए मारी जाए, एवे ना पाए तृष्णाए मारी जाए। হে সখী, কৃষ্ণের সেই শব্দ গুণে আমার কর্ণ অপহৃত হয়েছে, এখন তা না পেয়ে আমি তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছি। हिंदी में पढ़िए शशि माता जी। हे सखी, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मेरे कानों को कृष्ण की ध्वनि के गुणों ने लूट लिया है, किंतु अब मैं यह ध्वनि, दिव्य ध्वनि नहीं सुन पा रही हूँ और उसके बिना मृत प्राय हूँ। नूपुर किंकिनी ध्वनि हंस सारस जिनी, कंकन ध्वनि चटकेला যায়, कंकन ध्वनि चटकेला যায়। কৃষ্ণপুর কিঙ্কিনী ধ্বনি হংস সারস জিনি, কঙ্কন ধ্বনি চটকেলা যায়। একবার যে শুনে ব্যাপী রহে তারো কানে, অন্য শব্দ সে কানে না যায়, অন্য শব্দ সে কানে না যায়। একবার যে শোনে ব্যাপী রহে তার কানে, অন্য শব্দ সে কানে না যায়, অন্য শব্দ যে কানে না যায়। তার নুপুরের কিঙ্কিনীর ধ্বনি হংস এবং সারসের স্বরকে পরিচিত করে। ओके, भगवान के एंकल बेल्स, नुपुर की ध्वनि। तार कंकन ध्वनि चटक पाखी के लज्जा दे। कंकन ध्वनि इंग्लिश में लिखा है साउंड ऑफ हिज बैंगल्स, कंकन, कंगन का ध्वनि। अभी तो ये समझा पाएगा कैसे लज्जा देता है? वेरी डिफिकल्ट। कोई समझा पाएगा कि कंकन का ध्वनि कैसे चटक पक्षी को लज्जा देता है? चंदा माता जी, इसका क्या अर्थ हो सकता है? मतलब इतना तेज रहता है कि चटक पक्षी का जो आवाज रहता है उसको भी हरा देता है।
कम कर देते हैं उनके जो कंगन का ध्वनि था। আচ্ছা, যার কানে তা একবার প্রবেশ করে সে অন্য কোনো শব্দকেই কানে আর প্রবেশ করতে দেয় না। হরি বল। তারপরে হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, তার মানে চটক পাখির সুরও মধুরী হবে। কোকিল তো আগেরটাই দিয়েছে, কোকিল লজ্জা পায়, তার মধুর ধ্বনি। মাতাজি বলছেন খুব শার্প। না, শার্প হলে কি লজ্জা পাচ্ছে কেন? তাহলে কঙ্কনের ধ্বনি তো আরো সুন্দর। জানি না, শার্প হতে পারে, কানে লাগে না, কানে টাং টাং করে আওয়াজ কানে লাগে হয়তো। এনিওয়েজ কিছু লেখেনি যখন, তাও যাই হোক মাঝে মাঝে ব্রেনস্টর্ম করা উচিত। ওকে, 44 নম্বর শ্লোক। সে শ্রী মুখ ভাষিত অমৃত হইতে পরামৃত স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত। সে শ্রীমুখ ভাসিত অমৃত হইতে পরামৃত স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত। শব্দ অর্থ দুই শক্তি নানা রস করে ব্যক্তি প্রত্যক্ষর নর্ম বিভূষিত প্রত্যক্ষর নর্ম বিভূষিত। শব্দ অর্থ দুই শক্তি নানা রস করে ব্যক্তি প্রত্যক্ষর নর্ম বিভূষিত প্রত্যক্ষর নর্ম বিভূষিত। কৃষ্ণের বচন মাধুরী, কৃষ্ণের বচন মাধুরী অমৃতের থেকেও পরম অমৃতময়, ইজি, তা আবার হাস্যরূপ কর্পূর মিশ্রিত। শোনে পিছু ভাগা, তা শব্দ ও অর্থ এই দুই শক্তি সমন্বিত। And with his speech mixed with his smile, which is like camphor, the resultant sound and the deep meaning of Krishna's words create various transcendental melody. इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। তার শৃঙ্গার আদি নানা রস ব্যক্ত করে এবং তার প্রতিটি অক্ষর নর্ম অর্থ পরিহাস বিভূষিত। অর্থ না, অর্থাৎ প্রভুজি, নর্ম অর্থাৎ পরিহাস। হিন্দি में माताजी प्रभु এখানে অর্থ মানে কি? कृष्ण की वाणी अमृत से भी कहीं अधिक मीठी होती है। उनका प्रत्येक हर्षित शब्द अर्थपूर्ण होता है और जब उनकी वाणी उनकी कपूर जैसी हंसी से मिल जाती है तो इस तरह से कृष्ण के शब्दों से उत्पन्न ध्वनि तथा उसका गंभीर अर्थ विविध दिव्य रसों को उत्पन्न करते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन से बहुत नाना परमुटेशन कॉम्बिनेशन रस का होता है। अशोक प्रभु, অর্থ অর্থ বলতে এখানে কি বোঝায় প্রভু? অর্থ মিনিং, नाना अर्थ, हाँ नाना न्यू न्यू, मैं बता ना, न्यू न्यू मीनिंग आता है उससे, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से। क्या क्या कॉम्बिनेशन? स्माइल, वाणी और बोलने का जो शब्द, वॉइस। वॉइस দুই শক্তি লেখা আছে প্রভু কেন? শব্দ অর্থ দুই শক্তি, তা শব্দ ও অর্থ, শব্দ ও অর্থ প্রভু, ये দুই শক্তি সমন্বিত, ঠিক है ना? अगला श्लोक 45 নম্বর। টাইম আছে নাকি? না, এখানে রাখি। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।